Yes, sir. We are going to understand about the economy, its meaning. An economy is a system in which we know that the people earn their living by performing different types of economic activities, right? So this is one of the basic and very common in a layman language. If you ask what you mean by economy, you will say like that many of the people are doing economic activities. That's the economy, right? So there are different types of economic activities. Now, when we talk about the economy, there are primarily three types of economic activities. We call them as a production, consumption, and investment. So definitely the three types of economic activities are always there, right? And definitely you can categorize all the different types of activities into these three types: production, consumption, and investment. In other words, an economy refers to the whole collection of the production units in an area of the geographical area, or you can say it's a political boundary of a country by which people get their living. So definitely when we define the economy, आपको दिमाग में ऐसे आता होगा कि ये नेशन है, राइट? नेशन इज एन इकोनॉमी. सो यस, डेफिनेटली इट इज ऑल्सो ट्रू, राइट? ये भी एकदम गलत नहीं है कि आप जब नेशन को इकोनॉमी बोलते हो. सो नेशन इन इटसेल्फ इज इकोनॉमी. इट कंसिस्ट ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया or a political boundary. So don't get confused, but definitely this is very important to understand. Okay, when you talk about the geographical area or the political boundary, it covers many things, right? So we'll define that afterwards, that what the economy consists of. But in here, next year you're going to understand in detail a little bit. But in here you just understand कि वो geographical area है और वो political boundary है जहाँ पे उनके production units बहुत है, right? So economy is a territory where the production happens basically. You can say like that, right? An economy is classified into a market economy and a planned economy. ये भी याद रखिए कि इकोनॉमी दो तरह की होती है. एक जिसको बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी यानी जहाँ पे मार्केट डिसाइड करता है, राइट, ऑल द थ्री बेसिक क्वेश्चंस. एंड द सेकंड व्हाट वी कॉल एज अ प्लान्ड इकोनॉमी यानी जहाँ पे सरकार गवर्नमेंट डिसाइड करती है, राइट, ऑल दिस थ्री बेसिक क्वेश्चंस. द थ्री बेसिक क्वेश्चन, बाय दैट आई मीन व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce. Again, each of these economy can be a closed economy or it can be an open economy. क्लोज इकोनॉमी यानी वो इकोनॉमी जो लोगों के साथ ट्रेडिंग नहीं करती है. आज के जमाने में इफ यू लुक एट 192, मोर देन 192 नेशंस, तो उसमें ज्यादातर इकोनॉमी, मैक्सिमम और 99% ऑफ द इकोनॉमी आर ओपन इकोनॉमी. क्लोज इकोनॉमी इज द इकोनॉमी वेयर आप एक्सटर्नल ट्रेड नहीं करते, राइट, लोगों से. आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ट्रेड करते हो. इट मीन्स यू आर नॉट डूइंग एक्सपोर्ट, यू आर नॉट डूइंग इम्पोर्ट, नथिंग. So such kind of economy we call them as a closed economy, right? Now, central economic problems, very, very important. So when we talk about the central economic problems, we know that all the problems arises from the problem of choice. So economic problem is a problem of choice. The problem of choice has to be faced by every economy of the world, whether they are developed economy or they are developing, right? ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस सबको ही फेस करना पड़ता है, कोई भी तरह की इकोनॉमी क्यों ना हो. Now, human beings have wants, we know that, which are unlimited in nature, right? हमारे wants ऐसे होते हैं जो एक बार खत्म नहीं होते. And when these wants get satisfied, new wants crop up. अगर एक satisfied हो जाता है तो दूसरा crop up हो जाता है. And definitely that this human wants multiply at a very fast rate, right? This also you need to understand. At the same time, the economic resources around you, when you see they are available, जो भी availability आप देखते हैं, right, are very limited in nature, right? So they cannot satisfy all these unlimited human wants. They are very limited. In other words, resources of a factors of production, they are defined as the goods and services needed to carry out the production. You can say land, labor, capital, entrepreneurs. They are all in scarce. बहुत ही कम मात्रा में है, right? हमको जितना चाहिए उतना सब कुछ नहीं मिलता है. Now they are available in limited quantities in relation to demand. जितनी मार्केट में डिमांड है उसके सामने वो बहुत ही कम मात्रा में है. And that's why the problem of choice arises. So problem of choice arises all because of the human wants are unlimited, resources are limited, and they have alternative uses, right? यही एक reason है. Now resources are not scarce. यहाँ पे आगे बता रहे वो कि वो सिर्फ scarce है ऐसा नहीं है.
but they also have different uses. They also have alternative uses, right? All these resources when we see. So all this necessitates a choice. इससे ही हमारी choice जन्म लेती है, which goods and services to produce first and which afterwards. The economy comprising of individuals, business firms and societies. ये सभी लोगों को, इंडिविजुअल्स यानी हम लोग जो भी बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस फर्म्स लोग, एंड द एंटायर समाज जिसको बोलते हैं हम सोसाइटी, वी एवरीवन हैव टू मेक अ चॉइस, राइट? एंड चॉइस अबाउट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट डिसीजंस दैट वी टेक. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. जितनी भी इकोनॉमी की प्रॉब्लम आप देख रहे हो वो क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही, और तो कुछ नहीं है. आज अगर हम सरकार को पूछे कि कोविड की सिचुएशन चल रही है, राइट, व्हाट इज द चॉइस यू आर गोइंग टू मेक? You want to make a central vista project, or you want to deliver the oxygen to the people? So it's still a problem of choice. So कोई भी कोई प्रॉब्लम अगर आप लो, वो चॉइस ही है. आप क्या चॉइस करते हो वही आपका सॉल्यूशन देगा, राइट? सो प्रोफेसर अरबिन्स वाज वेरी क्लियर, और वो बहुत राइट बोल रहे हैं कि जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं द प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग. नाउ व्हेन आई से द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग का मतलब क्या? उसका मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उससे हम इतना तो कैसे मैक्सिमम यूज करें जो सबको अच्छे से अलोकेट हो जाए, राइट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल द प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग. So it is a problem of fuller and efficient utilization of resources, of limited resources, जिससे हम मैक्सिमम लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, राइट? याद रखिए, द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज ओनली क्रिएट्स द सिचुएशन. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अगर दुनिया में होता ही नहीं, अगर स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स नहीं होता. भगवान ने रिसोर्सेज बहुत स्कैर्स दिए हैं, राइट? अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है. जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलता नहीं है, जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन मिलती नहीं है, राइट? अगर ये ऐसा होता, राइट, तो कभी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होता ही नहीं, और कभी इकोनॉमिक्स का ही जन्म नहीं होता. ऐसा बोल सकते हैं कि हर एक इकोनॉमी का आप जो स्टडी कर रहे हो इसीलिए स्टडी कर रहे हो बिकॉज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर मिल्क, राइट, you can have options what you can make. You can either make sweets, you can make curd, or you can make delicacies, different delicacies, right? So the entire choice is yours. आप क्या बनाना है उससे, right? So it has definitely an alternative uses. If an economy employs more resources to produce good X, then it will have to forego the production of good Y. अगर वो रिसोर्स को ज्यादा यूज करेगा गुड एक्स को बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं गुड वाई कम बन पाएगा, राइट? बिकॉज मिल्क भी अगर लेट्स से हर रोज हमको मिलता है वो लिमिटेड प्रोपोर्शन में, अनलिमिटेड तो मिलता नहीं है. Hence, economy has to choose which of the goods, either X or Y, will give more satisfaction. And जो उसको ज़्यादा satisfaction दे उसके basis पे से ही उसको decide करना पड़ेगा, right? For example, an economy can produce both wheat and rice on the same plot of land, right? So the decision to produce wheat is an outcome of choice. अगर वो decide करता है कि मुझे wheat ही produce करना है, वो भी उसकी choice होगी, right? तो हमारे एग्जाम्पल में जैसे कि मिल्क है, राइट, तो वो स्वीट ज्यादा बनाना चाहेगा, तो कहीं ना कहीं उसको फ्रूट सलाद या वॉट एवर अदर डेलिकेसीज को उसको फॉरगो करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, राइट? तो एक चीज बना पाते हैं, राइट, दूसरी चीज हम उसको बलिदान देना पड़ेगा. एंड दिस इज हाउ द चॉइस वी हैव टू मेक ऑलवेज, राइट? सो फॉर एग्जांपल, इफ यू go outside to buy a mobile, you buy a Samsung Galaxy or you buy an iPhone. So definitely if you buy iPhone, you forgo Samsung Galaxy, or if you buy Samsung Galaxy, you forgo iPhone. So this is the choice everyone has to make. So what are the causes of economic problems? See, economic problem आते कहाँ से? What are the causes? So definitely I say the central problem is a problem of choice. सभी की जड़ तो choice ही है, right? But ये कहाँ से खड़े होते हैं? So economics हमको पता है is a social science, right? सामाजिक विज्ञान है ये. And what it analyzes how people, that is individuals and the whole society or the economy, make their choices between economic goals they want to achieve, right? Between the goods and services they want to produce, and between the alternative uses of their resources, जिससे वो अपने gains maximize कर सके. So all these choices have to make, right? To make their choices between
economic goals they want to achieve, your choices between the goods and services they want to produce, your choices between the alternative uses of the resources which will they maximize the gains. तो ये सब तरह की चॉइस बनानी पड़ेगी, राइट? तो हम जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, अभी याद रखिएगा नेक्स्ट टाइम से, वी ऑलवेज टॉक अबाउट चॉइसेस, राइट? भले वो हमको क्या अचीव करना है उसका चॉइस हो, क्या गुड्स और सर्विस बनाना है उसके चॉइस हो, या फिर कौन से रिसोर्स से हम बनाएंगे उसके चॉइस हो, चॉइस तो हमको करनी ही पड़ेगी. So this is where the causes of economic problems arise, right? That's a choice, and a choice क्यों आती है, ये choices क्यों होती है? Just because human wants are unlimited, resources are limited, and there all the resources we see they have alternative uses, right? Unlimited human wants, yes. आप एक चीज को सेटिस्फाई करो तो दूसरी चीज क्रॉप अप हो जाती है, क्रॉप अप हो जाती है, राइट? दे आर नॉट लिमिटेड इन नेचर. लिमिटेड रिसोर्सेस, अगर एक एप्पल है तो उसको मांगने वाले 10 हाथ होंगे, सो डेफिनेटली रिसोर्सेस 10 लोगों के लिए नहीं है, और इसीलिए तो देश में कोई गरीब और कोई अमीर दिखता है आपको, राइट? रिसोर्सेज लिमिटेड इसीलिए. एंड थर्ड, जितने भी रिसोर्स है उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है. जैसे यहाँ पे मैं बताऊँ, मिल्क है तो मिल्क का आप चीज, पनीर, बटर, राइट, बहुत कुछ बना सकते हो मिल्क से. सो उसके विकल्प बहुत है, ऑल्टरनेटिव यूजेस भी बहुत है. समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. Okay, let's go further. Now, why human wants unlimited? So let's understand the human wants unlimited in detail. पहले. So human being have wants which are unlimited, right? ये बताया गया है, but क्यों ऐसा क्यों होता है? So human want to consume more of a better goods and services has always been increasing. तो हम हमारी जैसे आमदनी बढ़ती है या फिर हम लोगों को देखते हैं बाहर, तो हम यही चाहते हैं कि हम भी बेटर तरीके से लिव करें, बेटर तरीके से कंज्यूम करें, और हमको ऑलवेज इसीलिए क्या चाहिए? वी नीड ए बेटर गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? एवरीवन वांट्स दैट. फॉर एग्जांपल, द हाउसिंग नीड हैड राइजन फ्रॉम अ स्मॉल हाउस टू लग्जरी हाउस. The need of means of transportation has gone up from scooters to cars, right? तो ये होता ही रहता है, छोटे घर से बड़े घर पे जाना चाहते हो, स्कूटर हो तो आप कार लेना चाहते हो. So human wants are endless. They're not going to stop at one point of time. They're going to be endless, right? एक satisfy करोगे तो दूसरी कॉप अप हो ही जाने वाली है. So they keep on increasing with the rise in the people's ability to satisfy them. अगर आपकी ability बढ़ जाती है satisfy करने की, तो आपको और कुछ बेटर चाहिए उससे. जैसे पहले जमाने में छोटा सा टीवी भी चल लेता था आपको, वैसे एक बार टीवी आ गया तो आपको लगा कि नहीं मुझे एलसीडी एलईडी चाहिए, एलसीडी एलईडी आ गया तो मुझे चाहिए कर्व टीवी चाहिए, 5G चाहिए, राइट? सो एक वांट सेटिस्फाई होने से दूसरी वांट क्रॉप अप होती ही जाती है. दिस इज द नेचर, ये ह्यूमन का नेचर ही है ऐसा. सो व्हाट दे आर एट्रिब्यूटेड टू? दे आर एट्रिब्यूटेड टू पीपल्स डिजायर टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट एंड एफिशिएंसी. हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट और एफिशिएंसी हर वक्त चेंज होती रहती है. हमको हर वक्त लगता है कि नए घर में, अच्छे घर में शिफ्ट हो, अच्छा कंफर्ट मिले, अच्छे से रहे, अच्छा फर्नीचर हो, राइट? एंड दैट्स व्हाई ये कभी खत्म नहीं होती, राइट? इट इज स्टिल अनलिमिटेड. द ह्यूमन टेंडेंसी टू एक्यूमुलेट थिंग्स बियॉन्ड देयर प्रेजेंट नीड. एक ह्यूमन की टेंडेंसी है कि उनको इकट्ठा करना बहुत पसंद है, और अभी से नहीं, हजारों लाखों सालों से, जब हम प्रिमिटिव एज में थे, फ्रॉम दैट टाइम टिल टुडे, व्हाट वी डू, वी एक्यूमुलेट थिंग्स, राइट? अगर आपके घर पे कपड़े हो तो कपड़े भरते रहोगे, पैसे हो तो पैसे भरते रहोगे. वी ऑल वांट टू एक्यूमुलेट थिंग्स, और एक्यूमुलेशन ही आपके वांट्स को ज्यादा जन्म देती है. बिकॉज वंस यू गॉट इट, आपके पास भले ही 40 जोड़ी कपड़े भी होंगे घर पे, आपको लगेगा कि आई डोंट हैव अ क्लोथ्स टू वेयर, right? So this is your nature, why you want to accumulate the things. That is the reason. There are some multiplicative nature of some wants, right? So buying a car creates a want for many other things. जैसे कि एक बार आपके पास कार आ गई तो आपको पेट्रोल चाहिए, ड्राइवर चाहिए, कार पार्किंग प्लेस चाहिए, सेफ्टी लॉक चाहिए, स्पेयर पार्ट्स चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए. सो एक चीज आ गई तो बहुत और चीज भी आपको चाहिए उसके साथ साथ, राइट?
basic needs of food, water and clothing. Because of food, water and clothing also, right? रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, उसके लिए भी आपको wants करने पड़ेंगे. So that is why also your wants goes on increasing. So आज काफी लोगों को फूड क्लोथिंग एंड वाटर मिल गया, जो लोगों को नहीं मिला वो वापस ऑन करेंगे. Influence of advertisement in the modern times created new kinds of wants and demonstration effect. जैसे आपने यहाँ पे मैंने बताई है डेयरी मिल्क की एडवर्टाइज, राइट? इसमें बताते हैं कि डेयरी मिल्क कैसे खाई जा रही है और उसको देख के आपको इच्छा होती है डेयरी मिल्क खाने की, राइट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. आप किसी को देख के आप ललचा देते हो, राइट? तो आप डेमोन्स्ट्रेट होके करते हो. एंड दिस इज व्हाई आल्सो ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड. Due to all these reasons, human wants continue to increase endlessly. Right? They are never going to stop any point of time. But some wants have to be satisfied as and when they arise, such as food, clothes, shelter, water, etc. ये सब satisfy होते जाते हैं, right? पर कुछ wants ऐसे होते हैं जो पोस्टपोन कर सकते हो आप. सी, खाना पीना रहना आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, पर हाँ लग्जरी कार पोस्टपोन कर सकते हो, क्योंकि वो नहीं होगा तो आप मर नहीं जाने वाले, राइट? यू आर स्टिल गोइंग टू बी देयर. सो सम वांट्स आर सच दैट यू कैन स्टिल पोस्टपोन, राइट? द प्रायोरिटी ऑफ वांट्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अभी किसको क्या वांट है वो भी डिपेंड करता है कि लोग कैसे हैं, राइट? देयरफॉर द क्वेश्चन अराइजेस, which want to satisfy first and which the last. Normally, basically, the people always go for first basic necessities and then go for luxuries. So luxuries they will go at last. They're not going to go luxury at first. Thus, consumers have to make a choice of what to consume and how much to consume. और इसीलिए कंज्यूमर को भी चॉइस करना पड़ता है कि क्या कंज्यूम करें और कितना कंज्यूम करें, क्योंकि वो जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे, राइट, उससे ये तो फर्क नहीं पड़ने वाला कि उनकी वांट्स खत्म हो जाएगी, नहीं, उल्टा वो और बढ़ेगी, राइट? सो इसीलिए कंज्यूमर ऑलवेज हैव टू मेक अ चॉइस कि हमको क्या कंज्यूम करना चाहिए और कितना करना चाहिए, राइट? समझ में आ रहा है? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. Yes, sir. Next, we also need to understand that the resources that is around us, they're limited. They're not unlimited, right? So scarcity of resources is the root cause of all economic problems. याद रखिए, right? अगर आपके पास एक टमाटर और खाने वाले 5 लोग हैं, तो definitely it's a scarce and scarce is a root cause of all problems. यही सबकी बड़ी जड़ है, क्योंकि इसीलिए तो आपको चॉइस करनी पड़ती है. अगर स्कैरसिटी नहीं होती, मैं ये बोल सकता हूँ, तो चॉइसेस भी नहीं होती और डिसीजन भी नहीं लेने पड़ते. क्योंकि स्कैरसिटी नहीं होती तो आपको सबको अबेंडेंट मिल जाता. और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इंडिया में या कहीं पे भी गरीबी नहीं होती, और गरीबी भी नहीं होती तो इकोनॉमिक्स भी नहीं होता. आप ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे होते, कहने का मतलब. All resources that are available to the people at any point of time for satisfying their wants are always scarce and limited, right? जैसे आप डेजर्ट में जाओ, definitely you if you find one bottle of water, there are many people to drink, right? Many are there. So conceptually, anything which is available and can be used to satisfy human wants and desire is a resource. जो चीज अवेलेबल है और ह्यूमन वांट्स और डिजायर को सेटिस्फाई कर सकता है, वो रिसोर्स है, अवेलेबल होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि अवेलेबिलिटी ना है. जैसे कि ऐसी चीज जो मिल ही नहीं रही है कहीं पे भी, राइट, उसको हम रिसोर्स नहीं बोलते. रिसोर्स तो वही चीज होती है जो अवेलेबल भी है और वो कहीं ना कहीं ह्यूमंस की वांट्स और डिजायर को सेटिस्फाई कर रही है. In economics, however, resources that are available to individuals, households, firms, and society at any point of time are traditional natural resources. नेचुरल रिसोर्सेज की अगर बात करें, रिसोर्स को समझ लिया आपने. नेचुरल रिसोर्स क्या है? नेचुरल रिसोर्स की अगर बात करें तो या ये कोई भी टाइम पे अवेलेबल हो नेचुरली, राइट, तो उसको नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं, राइट? और किसी के पास भी अवेलेबल हो सकता है. वो इंडिविजुअल्स के पास हो सकता है, हाउस होल्ड के पास हो सकता है, फर्म्स के पास हो सकता है, या फिर सोसाइटी, समाज के पास हो सकता है. Now, human resources, that is labor, capital resources like machine building and entrepreneurship are all scarce. ये सब कम मात्रा में. ये जो 4 factors of production जिसको हम बोलते हैं ना, land, labor, capital and entrepreneur, ये सब कम मात्रा में. Resources scarcity is a relative term. रिसोर्स का स्कैसिटी अगर आप बोलते हो
तो एब्सोल्यूट नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि एप्पल है ही नहीं, राइट, वो स्कैर्स ही है, नहीं, बट वो रिलेटिव है, किसके सामने स्कैर्स है, ऑरेंज के सामने। सो रिलेटिव का मतलब ये होता है कि किसके सामने वो स्कैर्स है, राइट, यानी खाना नहीं मिल रहा है, वो आप समझ सकते हो, जैसे कि आप बोल सकते हो कि राइस नहीं मिल रहा है, तो राइस किस में नहीं मिल रहा है आपको, नॉर्थ इंडिया में नहीं मिल रहा है, साउथ इंडिया में नहीं मिल रहा है, राइट, और किसके सामने वो स्कैर्स है, राइस के सामने या व्हीट के सामने, राइट, यानी पल्सेस के सामने या व्हीट के सामने, तो राइस किसके सामने स्कैर्स है वो आपको बताना पड़ेगा। सो रिसोर्स स्कैर्सिटी की हम जब भी बात करेंगे वो रिलेटिव बात करेंगे, हम कभी भी एब्सोल्यूट बात नहीं करेंगे। It implies that the resources are scarce in relation to demand for resources. हम जब scarce बोलते हैं तो उसके डिमांड सामने क्या है वो भी हमको देखना पड़ेगा, राइट। एग्जाम्पल में बताता हूँ, अगर हम मैं बोलूँ कि यूएस में मैंगोज कम मिल रहे हैं, राइट, सो इन रिलेशन टू व्हाट, इन रिलेशन टू अदर फ्रूट्स यू कैन से, राइट, क्योंकि वहां पे डिमांड नहीं है तो और कम मिल रहे तो कम बोलेंगे ही नहीं, कम तो तभी बोलेंगे जब डिमांड होने के बावजूद कम है। जिनकी डिमांड है और वो चीज नहीं मिल रही है तो हम बोल के स्कैर्स है, पर जहाँ पे जिनकी डिमांड ही नहीं है और वो मिल भी नहीं रहा है तो क्या मतलब, उसको स्कैर्स बोलने का कोई मतलब भी नहीं है, राइट। अगर हमको जो चाहिए ही नहीं, जैसे कि एग्जाम्पल बोलूँ कि जैसे सूरत में कोई जैसे ऐसे समझ जा दूं कि साउथ इंडिया में कोई वीट खाता ही नहीं है और वीट मिलते भी नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, साउथ इंडिया में वीट स्कैर्स है, नहीं। पर साउथ इंडिया में लोग राइस खाते हैं और राइस नहीं मिले तो बोलेंगे कि स्कैर्स है, क्योंकि वहां पे लोग डिमांड राइस की करेंगे, व्हीट की तो डिमांड कभी करेंगे भी नहीं, राइट। तो अगर मैं बोलूँ कि 30,000 क्विंटल राइस ग्रो हुए हैं, राइट, साउथ इंडिया में, सो इट्स अ गुड अमाउंट। पर अगर मैं बोलूँ कि आपको 5,000 किलो क्विंटल ही राइस ग्रो हुए, तो मैं बोलूंगा नहीं, साउथ इंडिया में स्कैर्स है राइस की। पर अगर वही चीज 5,000 किलो व्हीट ग्रो होती तो साउथ इंडिया में 5,000 किलो क्विंटल व्हीट ग्रो होता तो उसको कैसे नहीं बोलते, क्योंकि इतनी 5,000 किलो क्विंटल की डिमांड भी नहीं है वहां पे, तो समझ में आ रहा है। तो जब हम रिसोर्सेज का स्कैर्स होना बोलते हैं तो वी आर ऑलवेज सेइंग द स्कैर्स विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड फॉर दोस रिसोर्सेज। So the scarcity of resources is the mother of all economic problems, remember, because it is the only thing that forces the people to make choices. इसी से तो choice का जन्म होता है, right? Scarcity ना होती तो choices कहाँ आती? Point number 3, and very very important. All these resources you are seeing, observing, they all have alternative uses, right? The resources are not only scarce in supply, but they have alternative uses as well. Same resources cannot be used for more than one purpose at a time. Example, जैसे कि ₹100 can be used and put to various use. आपको जो रुपये अगर आपको मिले हैं तो आप काफी कुछ कर सकते हो, राइट। आप उससे पेट्रोल बाय कर सकते हो, नोटबुक बाय कर सकते हो, या फिर आप उससे आइसक्रीम, बर्गर या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पी सकते हो, राइट। सिमिलरली अगर आपके पास जमीन है, एन एरिया ऑफ लैंड है, कैन बी यूज फॉर फार्मिंग, आप उसे खेती बाड़ी कर सकते हो, और आप उस पर स्कूल या कॉलेज खोल सकते हो, या फिर उस पर हॉस्पिटल खोल सकते हो, या आप कोई बिल्डिंग बना सकते हो कंस्ट्रक्शन की। तो ये सब ऑल्टरनेटिव यूजेस है। कोई भी एक चीज आप लो तो उसकी हर एक के वैकल्पिक यानी ऑल्टरनेटिव यूजेस तो है ही, बट रिटर्न ऑन द एरिया ऑफ लैंड or utility of putting 100 in various uses according to the use of the connected resources. याद रखिए, रिटर्न तभी आपको मिलेगा जो जब आप उसको सही सही यूज करोगे। ये 100 रुपए का आपने अगर वेस्टेज कर दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है, पर अगर आपने उसको सही सही यूज किया तो डेफिनेटली उसके बेनिफिट भी बहुत अच्छे से मिल सकते हैं। इसीलिए प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत जरूरी है। उसका ऑल्टरनेटिव यूज तो है वो, उसका मतलब ये नहीं कि आप सभी यूज में डाल सकते हो रिसोर्स को। 100 रुपए सभी में नहीं आप खर्च कर सकते हो। क्या आप 100 रुपए का आइसक्रीम भी खा सकते हो, बर्गर भी खा सकते हो, कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हो, पेट्रोल भरा सकते हो? नहीं, मे भी एक आध दो चीज आपको कम भी करनी पड़े ना भी करनी पड़े, राइट। सो डेफिनेटली रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, और यही ऑल्टरनेटिव यूजेस याद रखिए उसको यूटिलिटी देता है, राइट। Thus, people always have to make choice between alternative uses of resources. So if the area of a land is put to a particular use,
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसमें स्कूल बनाई जाए तो डेफिनेटली आपको वो भूल जाना पड़ेगा कि इसके ऊपर मैं हॉस्पिटल बना सकता था या उसके ऊपर मैं फार्मिंग कर सकता था, या फिर आप उस पर फार्मिंग करो जमीन पे, तो आपको भूल जाना पड़ेगा कि मैं स्कूल बनाऊंगा या हॉस्पिटल बनाऊंगा उसके ऊपर, राइट। यानी हम लाइफ में जो डिसीजन लेते हैं तो उसके साथ काफी कुछ डिसीजन नहीं लेते हैं। एक डिसीजन अगर आपने लिया तो काफी कुछ आपने नहीं लिया, राइट। That means that one opportunity you have grabbed, you have lost or you have forgone or you have sacrificed many alternatives or many opportunities. जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो काफी अपॉर्चुनिटीज को, यही अपॉर्चुनिटीज को अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट बोला जाता है इकोनॉमिक्स में। दिस इज टर्म्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द ऑल्टरनेटिव्स यू हैव फॉरगॉन, सेक्रीफाइस। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. Right. Yes, sir. That's it for today. We are going to go tomorrow ahead with the economics problem of economy. Now, if you have any doubts, you can let me know.